regarding to the patenting of computer science and ICT related inventions. Sir has been instrumental in formulation of several procedural guidelines such as guidelines of for examination for computer related inventions CRI, manual of patent office practice and procedure MPOPP, and guidelines for patent highway. He has also functioned as a faculty at Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management, Nagpur, for various batches, and Sir has Nagpur for various batches of newly recruited Group A officers of Government of India, and for publishing training programs in the field of IPR. I welcome you, sir, on Thank behalf of you. University of Kota Research Department. Please start the session, sir. Thank you. Thank you. Good afternoon, everyone. Good I see afternoon, sir. already a lot of Good hands afternoon, are- sir. Good I afternoon, I sir. can see a lot Good of afternoon, sir. Good yeah, afternoon, yeah, sir. yeah, Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. yeah. Good afternoon. So I'm very happy that a lot of Good afternoon, people ma'am. have shown their interest. नमस्कार. अब सेशन शुरू करते हैं. Yes, sir. Okay. So let's start with today's topic. It's a very interesting one, and since I believe that a lot of people, majority of the people are involved in research. My voice is clear, right? Yes, sir. Yes, sir. Please, sir. Great. So as I have been already introduced, that Sorry, sir. Praveen Jain, please mute yourself. Start, sir. yeah. So good afternoon, everyone. I believe that everyone is able to see the slide, right? Yes, sir. One more Visible. acknowledgement I need that it's moving. Yes, sir. Is it moving? Yes. Okay. Yes. Okay, great. So good afternoon, everyone. This is Santosh Kumar Gupta, and I would request everyone to mute yourself so that we can have a smooth session. You can have your queries, and once we are done with the things, we can discuss the queries, and a lot of question answer session can be there. Feel free to ask any sort of question with regard to IP, and whatever problem or issues that you are facing, we can discuss it. But only thing that I would request you to let it be a disturbance-free session, because most of the time what happens that whenever we have webinars, majority of the time there are a lot of disturbances and people start sleeping. I'll try that no one sleeps. So let's start today's session. So when we talk about copyright and related issues in research, so important thing is research. When you talk about research, research is something where you are consuming some information, you are producing some utilizing that information. Once you consume that information, you process that information, and then you add on your work and bring something incremental in nature. This is what is generally a research is. Sometimes the result is a breakthrough innovation, and sometimes the result is incremental in nature. But important thing is that you are utilizing certain thing and you are producing certain thing. So when we talk about utilizing certain information, then a lot of copyright issues and something comes into the picture. Second thing is when you generate some research work. When some research work gets generated, then the next issue that comes is that it may be a scenario that your work itself may be utilized without your permission. So that is when the second problem comes. First thing is that whether you are infringing someone, and the second aspect is whether your work is getting infringed. We'll talk through all these things in today's session. And when we talk about instead of just focusing on copyright, I'll talk about certain other things also,
which is a broader aspect. And that broader aspect is intellectual property. Whenever we talk about research, whenever we talk about some work in a particular field, it is basically an outcome of human intellect. Human intellect means human has got the capacity to produce some knowledge, to think over it. That knowledge can be in the field of literary skills or technological skills, technological field, or in the field of design. So there can be n number of things where human intellect can work. So what is intellectual property? Something, a property which has got created out of intellect, human intellect, and that has certain commercial value. This commercial value is very important. When we say that human brain can create a lot of things, can do a lot of research, that creativity, that research can be in the field of various domains: technological field, humanity field, socio-economic research. Sometimes it can result into creative work like a good novel, good research paper. So ultimately, when we talk about that human intellect has created something which has got certain commercial value, we attach a word called property, intellectual property, something which has been created by human intellect and which has a value like property. And whenever we talk about property, we have this notion. If I say that what are the different kinds of property that you have, everybody will say that it's my car, my house, my bank balance, or different type of objects that you own. You'll say that that is my property. And you know what is very interesting? When these type of interactions happen in class, people will enumerate a lot of things with regard to property, but in the process they'll forget their own intellect, because we never treat our knowledge, our brain, or your wonderful human mind as something which creates some property, because we tend to focus more on tangible things and less on intangible things. That is why the moment I'm sure that if I would have asked this question in an open physical class, I would have got very interesting answers. So because many a time when I interact, people will talk about a lot of property they own, car, bikes, house, and everything. But in the process, they forget their human intellect. The biggest strength that we have. Is there any question? So biggest question that the biggest thing that we have is human intellect. So when human intellect creates some ideas, some expressions, which can be in the field of literacy, or in the field of technology, or in the field of design, that human creation, that human intellect creation, that idea or expression has got certain commercial value. But simply thinking about an idea will not have any value. What I mean to say, you may say that you have very wonderful idea. Say, for example, big problem is the air quality in Delhi. Or in Kota, a lot of news of suicide and a lot of sad news we come across. Someone can say that I have a very brilliant idea that all these problems, Delhi's pollution or Kota's suicide problem, those things can be solved with this this idea. But if this idea is not written somewhere, if that idea is not expressed somewhere in some tangible form, then you cannot claim that this is your idea. Why this important thing is,
The expression of creative ideas is important because it ultimately leads to one aspect which is called ownership of knowledge. So people may have, a lot of people see, we can talk about any problem and we all humans have solution to that. When we watch cricket matches, we say that ये shot नहीं play करना था. We all have ideas, but until unless we express those ideas, we codify those ideas at somewhere, that doesn't have value. That is why when you conduct a lot of research, your work output needs to be expressed somewhere. And when that intellectual property is attached with some rights, that is called IPR, intellectual property rights, which can be bought, sold, mortgaged, licensed, exchanged in the same line as it is done with the physical properties. Some people can say, no, we are coming from the background of Guru Shishya Parampara and we don't believe in the commercialization of knowledge. A lot of time people say this. But here the issue is not just commercialization of knowledge. Here the issue is either you protect your knowledge and have ownership with your knowledge, or tomorrow if someone comes up with the same knowledge and gets protection over that, that person can sue you, can file case against you and say that this is my idea, my creation, and he or she is utilizing this without my permission. So instead of prospecting with the knowledge that you have, you will become pirate of that knowledge. Why intellectual property in past few years, particularly last 1 decade, has become so important? Because people have slowly started realizing its value. That no, it's not just about protecting your own knowledge. It's about safeguarding yourself from other persons suing you on the charges that you try to steal or utilize his or her information without his or her permission. And that is where IPR plays a decisive role. Choice is yours, whether you want to become a knowledge pirate or you want to have you want to prosper with your knowledge. So that is where intellectual property is important. First aspect is that when intellectual property gets created, where it will originate? It will originate in human brain, okay, human intellect. Then once it has been created, then right needs to be established over that. Why right needs to be established? Because some idea you created and you say that this is my original idea. So who will decide that whether it is your original idea or not? That is where Government of India comes into the picture and my department comes into the picture. You'll come to me and say that this is the creation that I have done and this is my original creation. We'll look that whether it is original or not. Whether you have copied it from somewhere and simply saying that it is yours. So establishment of rights, there are certain tests that are done. Whether it is an original idea, whether it is just an idea about you claimed something and you have not established it. And once your creation passes those tests like originality, novelty, and in terms of patent, when we talk, it's inventive step, non-obviousness, a lot of criteria are there. But basic thing is you created something. Now there is authority which checks that whether it is original or not. If it is original, if it is new, then you are granted one right over that okay, you have got the right, which is a monopoly right. Important thing is that the rights that is granted, that is a monopoly right. What does it mean by monopoly?
You as the original creator of that idea, you as the original creator of that intellectual property, you will have monopoly right for certain years to exclude others to use those ideas, those creation without your permission. And for that permission, you can charge certain remunerations, certain fees, you can enter into certain licensing arrangements and some sort of that. And once you get that right, basically you exploit that right for those many years. And every intellectual property has different time. Like patents are granted for 20 years. When someone comes up with design means aesthetic consideration, outer look. Why I'm talking about this, your research can fall into any of these features, this particular thing. So when you tend to just think about copyright, you tend to think very restrained, very constrained. Research ultimately leads to generation of IP. That IP can be of copyright, that IP can be design, that can be patent, that can be trademark, that can be geographically. A lot of things can happen. So when you are conducting a research and the outcome is something with related to technological innovation, and always be very careful when I use certain phrases, because those are the phrases that determine in which type of IP you are going to have your protection. If it is technological innovation, say for example, let's talk about someone conducted research and came up with a bike. Okay, everyone can associate themselves with some bike. Now, during the research, you came up with a bike which has a very fuel efficient engine. If earlier bikes mileage were, say, they were running 40 kilometers in 1 liter of petrol, you have created a bike which is running 200 kilometers in 1 liter of petrol. That's a great idea. Some technological, for achieving this, you must have done certain technological innovations with regard to, say, engine. When it is technological innovations, it falls under the area of patents. If you will go for the protection, please mute yourself. Thank you. Yeah. So when it is in the field of technological innovations, it comes within the purview of patents. Patents are granted for 20 years from the date of filing. So you will get 20 years monopoly. You must have heard that some patented drugs, in pharmaceuticals, you'll see that certain patented drugs are very costly, while generic drugs are lower. They are of low cost. Why? Because the company which has got patent has conducted a lot of research for that. And now when they get monopoly, they are the only one which are manufacturing that, or they are the only one which are having the rights to give others license to manufacture that. Those people can charge certain things. So this whole arrangement of IPR, the patents and various other things gets created, creates some incentivization scheme for them to conduct research in that particular field. Okay, so if your research results into some technological improvements, technological innovations, you should file for patents. If with research, someone what does that, instead of making it a bike with fuel efficiency, or along with making it a fuel efficient bike, someone has also made a very beautiful design of that bike. Design means it looks very visually appealing. And someone can say that, say for example, Pulsar bike has got a very different view. Hero Honda bike has got a different view. And just by looking at the outer design without going into the technological aspect, you can make out that this is from this brand, this is from this particular thing.
So those design thing, for them you should file for design registration, where it is just visual appearance, which is called aesthetic consideration, visually appealing consideration, something which is appealing to the naked eye without utilizing any technique, any technology. That is called design registration. That is why you can have one product which has got multiple IPs. Why I am starting it like this? Because I want to break your mental shackles just thinking about copyright and everything. Think about whole as IP. Your research can result into technological innovations, file for patents. Your research may result into something which is having a very nice design which was not there earlier. Go for design registration. You may create a very nice logo for your bike. Say if you started a company, say Kota Bike Incorporation, anything like that, imaginary name I have given, and you create a very nice logo. Just by looking at that, I can know that this bike is from this particular company. Then you should file if it is of logo, something like if someone reads like M written in a particular fashion, everyone knows it is for McDonald's. So similarly, when you create something with regard to the, say, logo or something from which you can know that from which source it is coming, it is trademarks. It is related to trademarks. Okay. If you सर एक रिक्वेस्ट है yeah. सर एक रिक्वेस्ट है हिंदी में भी प्रयोग हिंदी भाषा में भी सब अगर हिंदी भाषा सबको आती है तो मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन नहीं, ऐसा ना हो उसका थोड़ा थोड़ा यूज करते रहे सर। ये दिक्कत नहीं है सर। नहीं, लेकिन कोई ऐसा ना हो जिसको हिंदी में दिक्कत हो। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे लेकिन कुछ लोग भी है वो ठीक है, बाइलिंगुअल कोशिश बाइलिंगुअल कर कर। दीजिए ना आप। Sir, you use both the languages, sir. ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, टेक्निक से रिलेटेड चीज होती है, तो वो पेटेंट फाइल करते हैं। पेटेंट जिस दिन फाइल करते हैं आप, उस दिन से 20 साल के लिए होता है। टर्म ऑफ पेटेंट इज 20 इयर्स। डिजाइन रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 15 इयर्स के लिए होता है। ठीक है, 10+5 होता है डिजाइन रजिस्ट्रेशन। और ऐसे ही ट्रेडमार्क होता है और वैसे ही कॉपीराइट होता है। अब मैं आपको कॉपीराइट पे आता हूं। कॉपीराइट में क्या है कि जब हम कोई लिटरेरी स्किल करते हैं, कोई गाना गाते हैं, कोई पोयम करते हैं, कोई अपने थीसिस बनाई या कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, ये सब कॉपीराइट में प्रोटेक्टेड होता है। कॉपीराइट का कितना है टर्म? कॉपीराइट का टर्म है लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 इयर्स। मतलब जितने साल जब जिसने बनाया है, जिसके नाम पे कॉपीराइट है, उनका जब देहांत होता है, उससे लेके 60 साल तक उस इंसान को कॉपीराइट होता है। इसीलिए मधुशाला बुक के लिए अमिताभ बच्चन चूंकि लीगर है हरिवंश राय बच्चन के, काफी दिनों तक उनको उसकी रॉयल्टी मिली। हरिवंश राय बच्चन जी की जब मृत्यु के टोटल 60 साल हो गए थे, उसके बाद वो फ्री हुआ कॉपीराइट से, वो उनका जो मधुशाला जो पुस्तक है वो। इसी तरह गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जो है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, वो उन्होंने लिखा था 1926-27 में। 1926-27 के आसपास लिखे थे गांधी जी। शुरू उन्होंने पहले किया था, फिनिश तब हुई थी। लेकिन गांधी जी का देहांत हुआ था 1948 में, 48 में। 60 इयर्स हो गए 2008 में। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो कॉपीराइट से जो फ्री हुई थी, वो 2008 में हुई। क्यों? क्योंकि 1948 में देहांत हुआ प्लस 60 साल। कॉपीराइट मिलता है लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 इयर्स। ठीक है। अब इतने सारे जो मोनोपोली राइट है, तो उनका कुछ क्राइटेरिया भी होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? देखा जाता है कि भाई वो ओरिजिनल वर्क है कि नहीं आपका।
कहीं ऐसा तो नहीं आप कहीं से कॉपी करके और यहाँ पे दिखा दिए। तो उसी को डिटरमिन करने के लिए बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे कानून बने हैं। जैसे पेटेंट्स के लिए पेटेंट्स एक्ट है, ट्रेडमार्क्स के लिए ट्रेडमार्क्स एक्ट है, कॉपीराइट्स के लिए कॉपीराइट एक्ट है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो एक पर्टिकुलर रीजन से कोई चीज निकलती है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। जैसे नागपुर के संतरे बहुत फेमस हैं, तो वो नागपुर के संतरे जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि उस जियोग्राफी से निकली हुई चीज ही माना जाता है कि उसकी जो क्वालिटी है, जो प्योरिटी है, वैसे और कहीं नहीं हो सकती। जैसे कोटा का कोटा पत्थर, कोटा मार्बल। फिर ऐसे ही डिजाइन के लिए डिजाइन एक्ट है, और बाकी सेमीकंडक्टर, इस तरह से करके बहुत सारे आईपीज हैं, उनके लिए सबके रूल्स, सबके लॉज हैं। अब हम आते हैं कॉपीराइट्स के, क्योंकि आज का जो विषय था वो है कॉपीराइट से रिलेटेड। कॉपीराइट क्या अधिकार देता है आपको? कॉपीराइट मैंने कहा था मोनोपोली, कोई भी आईपी हो वो मोनोपोली राइट देता है। जिसके पास अधिकार है, यानी कॉपीराइट होल्डर विल हैव द राइट टू रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट मतलब रोक सके जिसको, कोई भी अगर उसकी परमिशन के बिना कॉपी कर रहा है और रिप्रोड्यूस करके उसको मार्केट में ला रहा है। तो अब आपके रिसर्च वर्क में इसका बड़ा महत्व है। रिसर्च वर्क में आप बाकी जो पुराने रिसर्च किसी ने किया है उसका यूटिलाइज कर रहे होंगे। अब जब यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसकी तो आप हर सबसे परमिशन तो लेते नहीं है। जो आज का विषय था, आज का जो टॉपिक है कि इश्यूज रिलेटेड टू कॉपीराइट्स इन रिसर्च, उसमें उसके दो पहलू थे। पहला पहलू तो ये है जब आप रिसर्च कर रहे हैं, जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो दूसरे के वर्क को कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरे के वर्क को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है कि जब किसी का कॉपीराइट होता है तो उसको अधिकार क्या है। अधिकार ये है कि अगर आपने अनऑथराइज्ड उसकी कॉपी की है, जैसे इवन सिंगर्स का भी आप देखे होंगे, बड़ा न्यूज में आता रहता है that even singers have got these things, they say that this is my song and someone is utilizing this song, so वहां पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। 3 इडियट्स मूवी बनी थी तो कॉपीराइट का बड़ा इंटरेस्टिंग इश्यू आया था, सबको याद होगा। चेतन भगत ने कहा था कि ये मेरी जो नॉवेल है उसको 5 पॉइंट समवन उसकी कॉपी है, और इन्होंने मुझसे परमिशन नहीं ली और मुझे कोई क्रेडिट भी नहीं दिया। He used the word, I have not been given credit for my work in during the movie, while the plot of the movie has been extracted from my book 5 point someone. बट जब ये कोर्ट में केस गया तो पाया गया कि नहीं, अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे नहीं, मूवी काफी डिफरेंट है, थोड़ी सी चीजें मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी कॉपी है। वहीं पे जो दूसरी मूवी है टू स्टेट्स मूवी जो है वो चेतन भगत की ही जो दूसरी नॉवेल है टू स्टेट्स, उसकी उसमें से उठाया गया है और वो उसको क्रेडिट भी देते हैं। सो जब हम कोई काम कर रहे हैं और हम किसी और का वर्क यूटिलाइज कर रहे हैं तो पहली चीज तो उसकी परमिशन लेनी चाहिए। अगर हम परमिशन नहीं ले पा रहे हैं तो हमें उसको क्रेडिट देना चाहिए। कई बार इंसान आपसे पैसा नहीं चाहता है, वो चाहता है आप उसे एक्नॉलेज तो करें कि वो उसका काम है। आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि उसी की कॉपी करके और सर्कुलेट कर दे। अब जैसे ये मेरा प्रेजेंटेशन है, ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, ये मेरी कॉपीराइट है इसके ऊपर। अब मेरी मर्जी है कि मैं आपको फ्री में दूं या उस पर चार्जेस करूं, और अगर मैंने आपको दे दिया तो आप उसे यूटिलाइज कर रहे हैं चेंजेस करके, कोई मान लीजिए, तो एटलीस्ट आप कहें कि हाँ भाई ये इनका है। जो भी कार्य होता है, ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये प्रेजेंटेशन फ्री में मिलेगी ऐसी कोई बात नहीं है। द थिंग इज, only point that I am making is that the person who has created the work should be given credit. इसीलिए कहा जाता है जब रिसर्च वर्क करते हैं तो कम से कम बिब्लियोग्राफी में आप बताते हैं, रेफरेंस न्यूमरल्स डाल के बताते हैं, रेफरेंसेस में बताते हैं कि ये कहाँ से लिए हैं, साइटेशंस देते हैं कि कहाँ से लिए हैं, जो 1-2 मार्क करके जो नीचे हम लोग लिखते हैं पेजेस पे,
वो वही लिखा जाता है कि ये वर्बेटिम हमने वहां से उठाया है, या ये भी बताया जाता है, और उसका भी एक तरीका है, वर्बेटिम लेते हैं तो वो इटैलिक होना चाहिए और कोट्स में होना चाहिए। अगर वर्बेटिम नहीं ले रहे हैं, उससे इन्फरेंस लिए हैं, तो भी हमें कहना चाहिए कि हमने यहां से ये इन्फरेंस उठाया है। क्योंकि कॉपीराइट में जो जब आप रिसर्च करते हैं और उसके दौरान आप रिप्रोड्यूस करते हैं वर्क को, तो कई बार आप उसकी मीनिंग डिस्टॉर्ट कर देते हैं, तो उसमें मॉरल राइट भी है। मैंने मान लीजिए कुछ बहुत अच्छा क्रिएट किया था, कोई बहुत अच्छी पोयम लिखी, आपने अपने रिसर्च में उसको कोट करना चाहते हैं, पोयम था या फिर कोटेशन था, और आपने उसको डिस्टॉर्ट कर दिया और आपने बोला कि भाई ये मिस्टर संतोष कुमार गुप्ता ने कहा था, और लेकिन आप उसी तरह वर्बेटिम ना प्रोड्यूस करके कुछ और प्रोड्यूस कर दिए, तो फिर मेरा मॉरल राइट जो है वो उसका आपने हनन किया। मैंने तो ऐसा कोई शब्द कहा ही नहीं था, लेकिन आपने उस शब्द का प्रयोग कर लिया। तो whenever you talk about copyright, you should be very careful when you are utilizing it. Similarly, when someone else is utilizing your work, then also you should be vigilant enough. तो आपका चाहे लिटरेरी वर्क हो, चाहे मूवी की स्क्रिप्ट हो, चाहे कोई सॉन्ग लिखे हो, चाहे म्यूजिक लिखे हो, चाहे पेंटिंग बनाए हो, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखे हो, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पर से जो होता है, जो लिखा गया है, वो एक लिटरेरी वर्क माना जाता है। उसके बिहाइंड जो टेक्निकल आइडिया है वो तो पेटेंट में जाएगा, लेकिन जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा गया है वो एक पर से है, मतलब एक कॉपीराइट का सब्जेक्ट मैटर है। इट इज कंसीडर एज ए लिटरेरी वर्क। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण, मतलब बिल्कुल इसेंशियल नहीं है। जिस दिन आप कोई पोयम लिखते हैं, और ये चीज बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, जिस दिन आपने थीसिस लिखी उसी दिन आपको उस पर कॉपीराइट मिल गया, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ दैट वर्क। आप ऑफिस में आके रजिस्ट्रेशन नहीं भी लेते हैं तो भी आपका चलेगा, लेकिन पता है चैलेंज कहाँ आता है? जब दूसरा कोई वही वर्क लेके आता है तो आपके पास कोई तरीका नहीं होता है ये सिद्ध करने का कि ये कार्य मैंने ही किया था, मैंने पहले किया था, आई एम द ओनर। अब मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, दूसरे कोई मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने 2022 में कोई थीसिस लिखी, अब मिस्टर बी ने 2023 में वैसी ही चीज रिसर्च करके वैसी ही थीसिस ले आए। मिस्टर ए ने कोई उस पर कॉपीराइट भी नहीं लिया था, पेटेंट भी फाइल नहीं किया था, कोई आईपी नहीं लिया था। अब वो आते हैं कहते हैं कि नहीं नहीं, अब मिस्टर बी जो 2023 में लाए थे उनके नाम से कोई रिसर्च भी पब्लिश हो गई, उनको प्रमोशन भी मिल गया, हर जगह उनकी बुक भी छपने लगी। अब मिस्टर ए आते हैं कहते हैं नहीं नहीं, उसने तो मेरा चुराया है, he has stolen my work. Now Mr. A will not have any way to prove how his work was the original work and not Mr. B's work. इसीलिए कहा जाता है कि हमें रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्राइमा फेसाई गिव्स द राइट और प्रूव्स दैट हु इज द ओनर ऑफ दैट नॉलेज। क्योंकि ये माना जाता है कि जिसने पहले क्रिएट किया, जिसने पहले फाइल किया, वही पहला क्रिएटर है। और टर्म ऑफ तो बता ही दिया, प्रोटेक्शन लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर्स है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है। रिसर्च जब आप करते हैं तो दूसरे का जब कार्य आप यूज करते हैं तो कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है। सेकेंड पार्ट, जब आपका वर्क जनरेट हो गया, उस वर्क को कैसे ये इंश्योर किया जाएगा कि ए ने पहले किया या बी ने पहले किया। क्योंकि रिसर्च जब आप कर रहे होते शुरू में तो सीक्रेट रखते हैं, तो इसीलिए ये आईपी अथॉरिटीज बनाई गई हैं। जब आप उनको बताते हैं तो आपको एक प्रायोरिटी नंबर मिलता है, एक डेट मिलती है जहां पे ये होता है कि ये आपने क्रिएट किया था। अब दूसरा कोई कहता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरे पे है। मान लीजिए ए ने रजिस्टर करा लिया, बी कहते हैं नहीं नहीं पहले मैंने किया था, तो बी को प्रूव करना पड़ेगा कि पहले कैसे किया था। अब यही ए और बी वाले एग्जांपल में समझिए, ए ने 2022 में कुछ चीज बनाई, बी ने 2023 में बनाई।
बी ने 2023 में बना के ही रजिस्ट्रेशन ले लिया है, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करा लिया आईपी ऑफिस से, या पेटेंट फाइल करके पेटेंट का उनको एप्लीकेशन नंबर मिल गया। तब तक ए को पता चला, ए कहते हैं नहीं नहीं पहले तो मैंने बनाया था। अब ए के पास कोई भी ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे वो प्रूव कर सके कि नहीं नहीं मैं तो बी से पहले मैंने बनाया था, क्योंकि ए ने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कहीं कोई फाइलिंग नहीं की, उनके पास कोई तरीका ही नहीं है। तो जब वो मेरे पास आएंगे एज अ कंट्रोलर, जब मैं बैठ के देखूंगा तो मैं उनसे यही पूछूंगा कि आपने कैसे, आप कह रहे हैं कि आपने पहले किया है, कोई सबूत है? सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं हम लोगों के पास वो इस टाइप के आते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। इसको एक टेक्निकल वर्ड कहा जाता है रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग। उसमें क्या होता है, दो लोग मिलकर रिसर्च कर रहे थे या चार लोग मिलकर रिसर्च कर रहे थे, दो ने पेटेंट फाइल कर दिया, दो को पता ही नहीं था। बाद में जब दो को पता चला तो वो कहते हैं कि ये तो देखिए सर चोरी किया था, ये हम लोग साथ में कर रहे थे। तो वो प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। पेटेंट में तो चलता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं माना जाए, कॉपीराइट में ऑटो रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि ये प्रोसेस मैंने कहा ना, जिस दिन आप लिख देते हैं कोई चीज उस दिन वो आपकी कॉपीराइट हो जाती है। लेकिन उसे सिद्ध कैसे करेंगे जब कोई डिस्प्यूट हुआ तो? ठीक है, तो अब ये जो आईपी राइट्स जो किसी भी बिजनेस या किसी चीज में होता है वो क्या क्या होते हैं? जब कोई क्रिएटिव कंटेंट होता है, रिटन मटेरियल, फोटोग्राफ, ग्राफिक, म्यूजिक, वीडियो, स्लोगन, साउंड, सब कॉपीराइट की बात करते हैं। जिसमें कोई बिजनेस का नाम हो, साइन हो, लोगो हो, प्रोडक्ट हो, उसको आप ट्रेडमार्क में ले जाते हैं। किसी ने वेबसाइट डिजाइन की में जाएगा। अब कोई टेक्नोलॉजी की बात आई, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया तो उसको हम पेटेंट्स में देते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन में वो चीजें होती हैं जो एस्थेटिक अपील जो होता है, जो आउटर लुक, जिसका जो बाहरी जो देखने में जो जैसी चीज दिखे, उसको इंडस्ट्रियल डिजाइन में करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। हमें ये देखना है कि हमारे रिसर्च वर्क से क्या क्या बन के आया, क्या कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई, विजुअल अपील निकल के आया, या फिर लिटरेरी वर्क निकल के आई। अब क्या होता है कि कॉपीराइट में कुछ चीजें जो हैं वो इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आती, मतलब कुछ चीजें आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप किसी का वर्क अपने रिसर्च में यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग योर रिसर्च, तो आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन कमर्शियल यूज है। लेकिन आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आपने वो कहां से लिया है। किसी और के वर्क को अगर आप अपने वर्क की तरह दिखाते हैं, वहां दिक्कत है। ये फाइन लाइन समझने की कोशिश कीजिएगा। Many of the time people will talk about this is an exception to the copyright, that no suit can be filed against you for infringement of copyright if you are utilizing it for private or personal use like research. But if you have not acknowledged that person, you can utilize it, but at least acknowledge that. It is as simple as you are coming to a classroom, you are referring to a book, and you are not saying that you are referring to a book, you are projecting all the ideas of that book as your own ideas, as your own original ideas. That is where the problem is. और कहाँ कॉपीराइट के एक्सेप्शन होते हैं? इफ यू आर यूटिलाइजिंग समथिंग टू रिव्यू, अब किसी ने वर्क किया, आपने रिसर्च वर्क किया, रिसर्च पेपर अपना भेजा, एंड आई एम यूटिलाइजिंग योर रिसर्च वर्क टू रिव्यू इट एंड पास कमेंट ऑन दैट, then I am not infringing, though I am utilizing your research work, but I am utilizing it for criticism or for reviewing purpose. So then it will not be considered as infringement. Important aspect is if you are earning money out of that. If someone is reciting a paragraph from a book and getting money for that act, that is infringement of copyright. If someone is reciting a paragraph from a book to teach students that how you should pronounce it and how you should recite a poem or something, then it is devoid of infringement of copyright. So ये जो fine point है, that is an important aspect to understand. Similarly, कहीं पे कुछ current events हुए, current affairs हुए,
उसको जो रिपोर्ट करना है, लेक्चर जो पब्लिक में डिलीवर हुआ है उसको रिपोर्ट करना है, तो वहां पे जो चीज की जाती है वो कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानी जाती है। कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 52 है जो बताता है कि व्हाट आर डिफरेंट एक्ट्स विच आर नॉट कंसीडर्ड एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। सो अब आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बताते हैं। अब आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने में आप किसी का पेटेंट भी यूज कर रहे होंगे, किसी का आप लिटरेरी वर्क भी यूज कर रहे होंगे, किसी का रिसर्च पेपर भी कर रहे होंगे। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि जहां भी किसी और का वर्क यूज हो रहा है उसे एक्नॉलेज जरूर करना है। अगर आपने एक्नॉलेज नहीं किया और सोच रहे हैं कि कोई मुझे नहीं पकड़ेगा और 5 रिसर्च पेपर को जंबल करके हमने छठा अपना बना दिया, तो ये समझ जाइए किसी न किसी अथॉरिटी के जरिए पकड़े जाएंगे और आपका प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी वर्क जहां भी जिसका भी क्रेडिट है उसको दीजिए। आप बोलिए कि भाई दिस पैराग्राफ हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस, द वर्क वाज डन टिल दिस पॉइंट, द रिसर्च वर्क वाज डन, दिस वाज द इशू ऑन व्हिच आई एम वर्किंग एंड माय रिसर्च वर्क इज दिस मच। इंक्रीमेंटल जो भी पार्ट है वो आपकी क्रेडिबिलिटी भी इंश्योर करता है, साथ में इंश्योर करता है कि आप किसी और का कॉपीराइट ना इन्फ्रिंज कर रहे हो। और जब कोई आपका वर्क आगे इस्तेमाल करेगा तब उसे पता होगा कि कौन सा कॉपीराइट, कौन सी राइट किसके पास है, उसके लिए इजी होगा आपको अप्रोच करना। लेकिन समस्या कहां आती है, जब भी लोग इसको गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं कि किसी और के 4-5 लोगों का वर्क लो, अपने वर्क की तरह उसे प्रोजेक्ट करो, उसको जंबल करो, उसको मिक्स करो और प्रोजेक्ट कर दो। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के भी रिसर्च पेपर्स प्लेयरिज्म में जा रहे हैं, बहुत जगह पे बदनामी भी हो रही है देश की। अभी कुछ दिन पहले 2 साल पहले ही तो आया था, 2 नहीं 1.5 साल पहले आया था न्यूज में कि बहुत नामी गिरामी रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था और वहां पे पाया गया कि जो इंडियन ऑथर्स थे उन्होंने कॉपी करके बनाया था, 4-5 चीजों को जंबल करके और उसके बाद अपने वर्क की तरह उसे प्रोजेक्ट किया था। ये चीज ना करें। 4-5 जगह से ले, बिल्कुल अच्छी बात है, आप 10 जगह से लीजिए, वो आपके लिए, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल आपका भी काम होना चाहिए। आपका काम ये भी हो सकता है कि आपने इतनी सारी चीजों को मिक्स किया, लेकिन आप कहिए एटलीस्ट कि ये चीज यहाँ से है और हमने मिक्स किया। अगर जब आप नहीं कहते हैं तब आप फंसते हैं कॉपीराइट में। कॉपीराइट में भी फंसते हैं, आगे पेटेंट में भी, अभी बताऊंगा मैं पेटेंट में भी, तो उसमें भी फंसते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है क्या है, whatever you are taking from somewhere, don't destroy its spirit. Try to use it as verbatim as possible. Give them the credit by putting a reference to it, reference numeral to it, and then proceed with what actually you have done. फिर आपकी कोई ना तो रिसर्च पेपर फंसेगा, ना तो कोई थीसिस फंसेगी, ना तो कोई पेटेंट एप्लीकेशन फंसेगी। समस्या आती है जब आप थोड़ा सा गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं कि चलो मिला लो 4-5 जगह का, उसको अपने वर्क की तरह दिखा दो। तो ये इंपॉर्टेंट है, गिविंग क्रेडिट एंड एक्नॉलेजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स, and at the same time when you are yourself creating some work, apply for patent or copyright for that particular field so that you can establish prima facie that you are the one who created it first. आप वो व्यक्ति थे जो जिन्होंने सबसे प्रथम बार ओरिजिनल वर्क वो आपने किया। ये सिद्ध करने के लिए जरूरी है कि आप फाइल करें और आपके पास राइट्स हो। और जब एक बार मोनोपोली राइट्स आपके पास होते हैं तो खुद ही आपको लोग अप्रोच करते हैं। किसी ने बढ़िया बुक लिखी, अपने आप पब्लिशर्स के पास जब वो जाएंगे तो उनकी कोई बुक और कोई कॉपी नहीं करता है, प्रॉपर ढंग से चलता है, और कोई कॉपी करता है तो वो उस पर इन्फ्रिंजमेंट सूट डालते हैं। इसी तरह किसी ने रिसर्च वर्क करके कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की, फाइल किया, उन्हें पेटेंट मिल गया, तो जिस कंपनी को जिसको भी आगे करना होगा वो आपसे परमिशन लेगा, आपको पैसे देगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज होती है।
अब मैं आपको बताता हूं पेटेंट, क्यों पेटेंट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हम देखिए समस्या कहाँ आती है, समस्या ये आती है कि हम रिसर्च वर्क को पब्लिश करने में तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में पेटेंट फाइल करने का ट्रेंड कम है, अब बढ़ने लगा है, पिछले 3-4 साल से बहुत बढ़ रहा है। लेकिन जब भी रिसर्च आए, आप कोशिश कीजिए कि पब्लिकेशन से पहले आप पेटेंट फाइल कीजिए। पेटेंट फाइल करने से क्या होता है कि एक तो आपकी वैल्यू ज्यादा बढ़ती है रिसर्च वर्क की। आपको पता होगा इंडिया इन टर्म्स ऑफ scientific and technological research paper, India figures in top 5 countries of the world. Why? Because India is really a good creator of knowledge. But when it comes to commercialization of knowledge, India lags behind. And that is the reason why Government of India has been pushing so much for patenting. हम लोग कई बार नॉलेज जनरेट करते हैं, रिसर्च करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक रिसर्च। हमारे दिमाग में ये नहीं होता है कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और हमारी रिसर्च उसे कैसे सॉल्व करेगी। हम ये सोचते हैं कि हम 4 रिसर्च कर लेंगे, उसके बाद हमें प्रमोशन मिल जाएगा, हमें कहीं पे लेक्चरर हैं तो हम सीनियर बन जाएंगे, एसोसिएट प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर बन जाएंगे। We focus more on the academic excellence instead of commercial and economic excellence. ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है और उसी समस्या को डील करने के लिए, उसी को टैकल करने के लिए in the recent time government is providing so much emphasis on patent filing, on IP filing. So that is something which you should consider. And why I am saying that you should file first patent application, then go for research publication, because in the patent it is the rule that it should be the patent office which should know your research first. Otherwise जो चीज पब्लिक डोमेन का पार्ट बन गई उसमें अब मैं एज ए पेटेंट कंट्रोलर जब मैं बात करता हूं, ऐसा मेरे साथ इतने सालों में, मतलब I have been with patent office for more than 12 years. लेकिन पिछले 12 years में अराउंड 6-7 केसेज ऐसे आए हैं जहां पे ये गलती की है लोगों ने। पहले रिसर्च पब्लिश कर दिया या यूट्यूब पे डाल दिया अपनी इन्वेंशन और बाद में मेरे पास फाइल हुआ, तो उन्हीं की इन्वेंशन पब्लिक का पार्ट बन जाती है, प्रायर आर्ट का पार्ट बन जाती है। सो उसी से नॉवेल्टी और इन्वेंटिव स्टेप किल हो जाता है। मींस उसी से ये हो जाता है कि नहीं ये तो आपका नया नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टू फाइल सिस्टम होता है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज। ये है फर्स्ट टू फाइल, जिसने सबसे पहले फाइल किया उसके राइट्स माने जाते हैं। अगर आप बिना पेटेंट ऑफिस में फाइल किए जब आप रिसर्च पब्लिश कर देते हैं तो आपके पास कोई तरीका ये नहीं है ये बता पाने का कि वो किसी और ने अगर फाइल किया तो वो आपकी कॉपी से किया या ओरिजिनली उसका आइडिया था। इसीलिए बेस्ट वे इज कि व्हेनेवर यू कम अप विद रिसर्च एंड यू हैव टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्निकल इनोवेशन इन दैट, यू शुड फाइल फॉर पेटेंट एंड देन गो फॉर रिसर्च पब्लिकेशन। सेम डे पे भी आप रिसर्च पब्लिश कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक दिन भी पहले किए हैं तब इश्यू आता है। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है? जब आप एक एकेडमिक पेपर, तो रिसर्च पेपर तो लिखना मेरे ख्याल से सबको यहाँ आता होगा, जब सब पीएचडी की बात कर रहे हैं तो सबको आता होगा। पेटेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लेम्स, इसीलिए वो टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट होता है। एकेडमिक रिसर्च पेपर इज अ टेक्नो डॉक्यूमेंट, टेक्निकल डॉक्यूमेंट, बट पेटेंट एप्लीकेशन इज अ टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट। उसमें क्लेम्स होता है, आई क्लेम दिस पर्टिकुलर सिस्टम, जो भी आपने सिस्टम बनाया। जैसे मैंने बोला था कि बाइक का इंजन सिस्टम, फ्यूल एफिशिएंट इंजन सिस्टम बनाया, तो वो स्टार्ट होता है क्लेम्स, आई क्लेम अ फ्यूल एफिशिएंट इंजन, बाइक ऑटोमोबाइल इंजन कंप्राइजिंग these पार्ट्स। तो वहां पे लीगल राइट्स आपको मिलते हैं, आपको 20 साल की मोनोपोली राइट मिलती है कि कोई आपकी परमिशन के बिना अगर उसको यूज करता है तो आप उसको सू कर सकते हैं, उसे कोर्ट में कह सकते हैं कि इन्होंने हमारा यूज किया है, हम इनको सू कर रहे हैं।
So this is what is the difference between academic paper and a patent application. बहुत माइनर डिफरेंस है, बेसिक काम एक ही चीज होता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच लेके चलना होता है कि अभी तक कितना रिसर्च हुआ था, उस रिसर्च में क्या प्रॉब्लम थी और मेरा रिसर्च उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। जो पार्ट आपका है आप उस पर क्लेम करते हैं कि ये मेरा पार्ट है और अपनी इन्वेंशन को फुल्ली और पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करते हैं। किस मेथड से उसको बेस्ट वे में परफॉर्म किया जा सकता है आप ये बताते हैं और क्लेम्स होता है जिसके तहत आपकी एप्लीकेशन, फिर आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं। जनरली जो हेडिंग्स होती हैं पेटेंट एप्लीकेशन की वो ये होती है, टाइटल ऑफ इन्वेंशन, ऑफ कोर्स टाइटल आप बताते हैं, जैसे एग्जांपल जो मैंने लिया कि फ्यूल एफिशिएंट इंजन फॉर ऑटोमोबाइल, फर्स्ट फील्ड ऑफ इन्वेंशन ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड इंजन, यूज ऑफ इन्वेंशन ऑटोमोबाइल सेक्टर में फ्यूल एफिशिएंसी के लिए इंजन। मैंने प्रायर आर्ट आप बता देंगे ये चीजें पहले से थी, उसमें ये प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम को मेरी इन्वेंशन सॉल्व करती है वही उसका ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेंशन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपकी इन्वेंशन का वही हो जाएगा। समरी ऑफ इन्वेंशन आप बता देंगे कि हम ऐसे ऐसे करके हमने उसका स्पार्क प्लग ऐसे चेंज किया, फ्यूल के इंजेक्शन ऐसे चेंज किया और इस तरह से हमने एफिशिएंट बनाया। फिर आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जो भी ड्राइंग्स होते हैं उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं, फिर आप डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं कि क्या क्या है, कैसे हो रहा है इन्वेंशन। ड्राइंग्स होती है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, बेस्ट मेथड बताते हैं और क्लेम्स फिर फाइनली करते हैं कि ये मेरा क्लेम है। ड्राफ्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप गूगल कर लीजिए, गूगल पेटेंट्स पे जाइए, वहां पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा आप देखेंगे कि उसी फील्ड की जो जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा फ्यूल एफिशिएंट ऑटोमोबाइल इंजन, तो आप सर्च करेंगे कि फ्यूल एफिशिएंट ऑटोमोबाइल इंजन के फील्ड में पेटेंट कौन कौन से हैं पुराने। गूगल पेटेंट्स पे जाते हैं, patents.google.com, वहां पे आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ पुराने पेटेंट मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे ड्राफ्ट किया है, कैसे लिखा है उन्होंने। उसी तरह से आप अपनी बात को भी सेम स्टाइल में फ्रेज करने की कोशिश कीजिए। यू ट्राई टू फ्रेज योर ओन इन्वेंशन इन द सेम फैशन। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी एग्जैक्टली आपकी इन्वेंशन क्या है और कौन सी प्रोटेक्शन आपको चाहिए। कल को अगर कोई आपका इन्वेंशन यूज करे तो आप उसको सू कर सकें। मेन पर्पस मोनोपोली राइट्स का, आईपी राइट्स का ये है कि आप किसी और को रोक सके कि भाई मेरी परमिशन के बिना आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, ये नहीं परमिटेड है। आप यूटिलाइज कर सकते हो मेरा, प्रोवाइडेड आप मुझे पे करो और लेट्स गेट इनटू सम एग्रीमेंट। फाइल करने का तरीका, आप वेबसाइट पे जाते हैं, वही आईपी इंडिया की वेबसाइट है और वहां पे आप जाके फाइल कर सकते हैं। बाकी ये मैंने लिंक भी दिया हुआ है कि मैनुअल ऑफ पेटेंट ऑफिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है कि किस तरह से फाइल कर सकते हैं, क्या है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स कि टेक्नोलीगल डॉक्यूमेंट है, किस तरह से फाइल होता है। ये तो लाइफ साइकिल है उसकी, कैसे एग्जामिनेशन होता है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ पेटेंट की लाइफ साइकिल में। बेसिकली जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, ये चाहे पेटेंट हो चाहे कॉपीराइट हो, मोर और लेस एक तरह से जो चीजें चलती हैं वो क्या होता है, आप ये समझिए कि आपने एप्लीकेशन फाइल की, आपकी एप्लीकेशन कोई एग्जामिन करेगा। अब भाई आपको मोनोपोली राइट मिल रही है तो ये तो देखा जाएगा ना कि आपका ओरिजिनल वर्क है या फिर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट मार लिया है, तो वो देखा जाता है। जब देखा जाता है कि आपका ओरिजिनल वर्क है तो आपको राइट दे दिए जाते हैं, उस पर अधिकार दे दिया जाता है। और वो उसी में जैसे पेटेंट में नॉवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये 3 क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया ऑफ पेटेंटेबिलिटी जिसको कहते हैं। कॉपीराइट में ओरिजिनलिटी देखते हैं कि क्या आपका ओरिजिनल आइडिया है, कहीं आपने कॉपी तो नहीं किया है। उसके लिए बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं कि 4 लाइन रूल होता है कि कहीं से 4 लाइन तो आपने नहीं कॉपी कर ली है, 2 पैराग्राफ तो नहीं कहीं से ले लिए हैं। साथ में एक डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस भी चेक किया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस में कि अगर किसी थर्ड पर्सन को पढ़ाया गया आपका डॉक्यूमेंट और जिससे आपने कॉपी किया उसको, तो उसको देख के क्या लगता है कि हाँ आपने कॉपी किया है या उसको लगेगा कि हाँ आपने अलग से किया है। तो ये पूरा प्रोसीजर है कि क्या होता है, ये मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पेटेंट का आप लोग को नहीं चाहिए होगा नॉलेज। बट मोटा मोटी आपको बता दूं कि ऑफिस में 2 तरह की ग्रुप ए अथॉरिटी होते हैं, एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स। जब एज अ ग्रुप ए रिक्रूट होते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद दे गेट प्रमोटेड एज कंट्रोलर।
तो एग्जामिनर टेक्नोलीगल अथॉरिटी होता है, कंट्रोलर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होता है। क्वासी जुडिशियल क्यों? उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है और वो उसके पास डिस्ट्रिक्ट जज की भी पावर होती है। तो जब हियरिंग लेता है कंट्रोलर, जब मैं हियरिंग ले रहा होता हूँ तो मेरे पास एक डिस्ट्रिक्ट जज की पावर होती है कि मैं आपको अंडर द ओथ आपको समन करके बुला सकूं, आप अपनी बात कहें और आप जो भी कहेंगे सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे टाइप। उसी तरह से जब एग्जामिनर जो होता है उसके पास फाइल आपकी आती है, वो देखता है, उसको सर्च करता है। हमारे पास डेटाबेस होता है जिसमें हम सर्च करते हैं कि आपका काम ओरिजिनल वर्क है कि नहीं है। जब ये पाया जाता है कि नहीं आपका वर्क ओरिजिनल है तो आपको राइट दिए जाते हैं। पाया जाता है कि नहीं ओरिजिनल नहीं है, कुछ इसमें इश्यू है, तो वो रेफर करते हैं, अपनी रिपोर्ट कंट्रोलर को दे देते हैं एग्जामिनर। फिर कंट्रोलर आपको एक चिट्ठी भेजते हैं जिसको FER कहते हैं, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। फिर आपको 6 महीने का टाइम मिलता है कि आप उसमें जो भी अमेंडमेंट कर सकें वो अमेंडमेंट करके आप अपनी बात कहें कि नहीं नहीं ये मेरा ओरिजिनल वर्क है, जो आपने साइटेशन जिसको लगाया है वो देखिए, उसके में और मेरे में ये अंतर है। फिर एग्जामिनर उसको एग्जामिन करता है, देखता है, अपनी रिपोर्ट कंट्रोलर को देखता है। कंट्रोलर को लगता है कि ग्रांट होने लायक है तो ग्रांट कर देते हैं, अदरवाइज अगर लगता है कि नहीं ये रिफ्यूज होने वाली है या मतलब कुछ ऑब्जेक्शन इसमें पेंडिंग है तो वो हियरिंग देते हैं, जिसको कहा जाता है हियरिंग नोटिस। अब हियरिंग की डेट पे आप अपीयर होते हैं कंट्रोलर के सामने VC के माध्यम से ही, जैसे ये वेबिनार है वैसे आप VC से अपीयर होते हैं। आप अपनी बात एक्सप्लेन करते हैं कि सर देखिए ये कारण है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्शन ऑफिस का आया है वो वैलिड नहीं है, या आप कहते हैं कि मैं इस तरह से क्लेम अमेंड कर दूंगा। कई बार होता क्या है, आप क्लेम बहुत बड़ा ही चीज करते हैं, बाद में आपको पता चलता है नहीं आपने आपकी इन्वेंशन थी थोड़ी सी, रिसर्च वर्क आउटपुट थोड़ा सा ही था, तो आप उसको रेस्ट्रिक्ट करके फिर ग्रांट हो जाता है, या फिर अगर लगेगा कि नहीं पूरा ही कॉपी है तो फिर वो रिफ्यूज हो जाता है। और अगर आपने ऑफिस के रिस्पॉन्स को ही कुछ नहीं दिया जो 6 महीने में करना था तो एप्लीकेशन आपकी अबैंडन हो जाती है। तो इस हिसाब से इवेलुएट होता है आपकी कोई भी रिसर्च। और बाकी तो ये है कि ऑफिस में ट्रांसपेरेंसी होती है, क्योंकि जनरली किसी को जब कोई एप्लीकेशन आती है तो ये किसी को नहीं पता होता है कि ये किसके पास जाएगी। वो ऑटो अलॉटमेंट होता है हमारे यहाँ, जो सिस्टम है वो कंप्यूटर खुद से ही, कंप्यूटर सिस्टम है जो ऑटो अलॉट करता है। हर इंसान की उसकी टेक्निकल फील्ड डिफाइंड है हर एग्जामिनर की कि ये इस फील्ड से है। कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, मेजॉरिटी लोग PhDs हैं, तो वो आते हैं फाइल उनको अलॉट होती है और उसके बेसिस पे फिर आगे जाता है। जो रिपोर्ट भेजी जाती है उसमें समरी होती है, डिटेल टेक्निकल रिपोर्ट होती है, सारी बातें होती है। सो ये जो मैं आपको कह रहा था कि ये 3 क्राइटेरिया होता है कि नॉवेल्टी होनी चाहिए, नया होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। आप ऐसी बात ना कहते हैं जो कि इंडस्ट्री एप्लीकेबल ही ना हो। जैसे एक बार मेरे पास एप्लीकेशन आई थी जिन्होंने कहा था मैं ग्लोबल वार्मिंग वर्ड की ठीक कर दूंगा, और कैसे ठीक करूंगा, मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस होगा जिसकी फोकल लेंथ की वैल्यू जो होगी वो अर्थ की जो रेडियस है उसके बराबर होगी। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। कभी कोई कहते हैं कि डायमीटर, अर्थ की डायमीटर के बराबर का मैं फोकल लेंथ, वो इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल ही नहीं है, आप कहाँ करेंगे। तो इस टाइप से आती हैं एप्लीकेशंस और उस पे फिर एग्जामिन होता है, फिर ऑफिस की रिपोर्ट जाती है, डिस्कशन होता है ड्यूरिंग द हियरिंग, और उसके बाद फिर फाइनली ग्रांट या रिफ्यूज होती है। ओके, सो थैंक यू सो मच। नाउ वी कैन टेक योर queries. So wherever you are having any questions, we can discuss it. The person who is moderating the session can ask the people who have raised their hands one by one. कोई क्वेश्चन पूछना सर, चाहते हैं नमस्ते। क्या? नमस्कार। हेलो। हाँ, सनवत बैरवा जी बोल रहे हैं।
या ओम प्रकाश जी, कौन पूछिए। सनमत बैरवा सर। हम्म। हेलो हेलो, सुन रहे हैं क्या सर? आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज, बताएं। जी सर, मैंने क्या कि अभी एक बुक लिखी थी, हम्म। तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो है उससे थी, और हिंदी का आपकी उसमें आवाज मेंशन बहुत किया। कट रही है। ऐसा कीजिए, आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए। मुझे लग रहा है नेटवर्क इश्यू जी, होगा। तो सर मैं एक बार लेफ्ट होके वापस ज्वाइन हो जाता हूँ अभी ठीक आ रही है आवाज, पूछ लीजिए। फिर। जी, तो उसमें मैंने क्या कि उनके रेफरेंस वगैरह, उनके जो बुक्स वगैरह है उनका रेफरेंस दिया है, लेकिन मैंने बुक के अंतिम पेज पे दिया है उनका संदर्भ सूची के नाम से। हम्म। तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? संदर्भ सूची जहां दे रहे हैं आप, तो रनिंग टेक्स्ट में आपने 1 2 3 ऐसा कुछ बताया है ना? जी नहीं बताया सर। नहीं बताया, तब दिक्कत है। देखिए, उससे पता नहीं उस चलेगा ना, संदर्भ सूची बुक से ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा पार्ट कहाँ से किसके लिया है आपने। जी, ये पहला ही प्रयास था ना, तो अब तो अब एक कोर्स में अब वो करना। आवाज कट गई आपकी। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लीजिए, ऑडियो से ज्वाइन कर लीजिए सिर्फ। जी हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ, आप आ रही है, बताएं। हाँ, तो सर उस समय इतनी जानकारी थी नहीं, और वो बुक मैंने पब्लिश करवा दी। उसमें क्या है कि वो संदर्भ सूची के हिसाब से अंतिम पेज पे उनकी जानकारी दी हुई है, जहाँ जिन पुस्तकों से इस पुस्तक का कुछ मैटर लिया गया है। एजिड तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने उसमें लिखा है लेखक एवं संपादक, तो जैसे संपादक लिखा तो उससे कुछ बचाव तो हो पाएगा या? हाँ, देखिए, अब जो चीज हो गई, तो एक चीज और भी होती है कि कई बार अगर कोई, जी मान लीजिए कि आपको इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल कर रहा है या कोई आपको भेजता है नोटिस, तो आप उसमें जी कह सकते हैं कि ये एक इनोसेंट मिस्टेक थी। देखिए, दो चीजें होती हैं लॉ में। एक होता है जी मैलाफाइड इंटेंशन और बोनाफाइड इग्नोरेंस। अच्छा एक कि मतलब जानबूझ के किया गया कुकृत्य या जी अनजाने में की हुई गलती। तो अगर एक जी सर बोनाफाइड इग्नोरेंस, बोनाफाइड मिस्टेक होती है जो कि अराइजिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस है, कि नहीं समझ पाए, नहीं पता था, तो उसको लीनियंटली जी देखा जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा होगा कि किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो कहेगा कि देखिए, अब आप बुक अपनी रहने दीजिए, इसमें आपने एक्नॉलेज नहीं किया है। तो आप उसको ये कह सकते हैं कि ठीक है, जहां पे मैंने जो भी लिया है हम उसमें वहां पे नंबरिंग डाल देते हैं। जब भी ये संदर्भ सूची वाला जो सिनेरियो होता है ना, उसमें क्या किया जाता है कि आप जब भी बुक लिख रहे हैं कोई, वहां पे मान लिया आपने 2 लाइन कहीं से उठाई, वहां पे सुपर स्क्रिप्ट में जी छोटा सा 1, आगे 2 3, और फिर आखिरी में जब संदर्भ सूची देते हैं तो दे देते हैं 1 का मतलब क्या था, कहां से हमने उठाया था, 2 का मतलब क्या था, कहां से उठाए थे। तो वो आपके पास ऑप्शन रहेगा, उसमें कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। लेकिन आगे से ये ध्यान रखिएगा। जी सर, नहीं किसी से मैंने पूछा था, उन्होंने बताया था कि आप लेखक के बाद में संपादक और सब जोड़ दीजिए, उससे भी आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि भाई आपने मूल रूप से लिखा नहीं है, इसको संपादित किया है। नहीं, वो सब सही है, लेकिन देखिए, जब हाँ कॉपीराइट का मैटर होता है तो कोई ये चीज कह देता है
तो फंस तो जाते ही हैं। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे, आपने एक चीज को बोला कि भाई हम संपादित किए हैं और साथ में लेखक भी हम कह रहे हैं, तो दोनों है ना, राइटर तो प्लस सर एडिटर की बात होती है। ऐसे तो सर उस पुस्तक में जी हाँ हाँ हाँ, बताइए कुछ कह उस रहे पु, हैं। उस पुस्तक में ये है कि सारा अपनी तरफ से क्या है कि सारा डाटा ही है, वस्तुनिष्ठ इतिहास है वो। उसमें हाँ ठीक है, कोई दिक्कत एक नहीं है। देखिए हाँ, बहुत सारी पुस्तकें उसमें क्या है होती कि हैं, तो बस ये जरूर है कि वो आप बता रहे थे ना कि नीचे ही जहाँ से आपने संदर्भ ग्रंथ है उसी का नाम नीचे साइटेशन में होना चाहिए था, वो जरूर त्रुटि रह गई। लेकिन साथ में ये है कि अगर ऐसे ही टैग देते रहे तो उसमें कम से कम आप मान लीजिए कि 1000 बिंदु तक जाएगा ये मामला फिर। कोई बात नहीं। देखिए आप कोई भी चीज कहीं से भी ले रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आपको वहीं पे डिटेल देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, बढ़ते जाइए। पूरी पुस्तक खत्म अच्छा होने के बाद मान लीजिए 1000 बिंदु हो गए, जी आखिरी में आपने जब संदर्भ सूची दी तो एक पेज पे करीब 30-40 आ गए संदर्भ सूची की चीजें, ऐसे करके 20 जी पेज हो जाएगा एडिशन, और क्या हुआ। लेकिन आप कभी नहीं फंसेंगे। आप देखिए कोई भी जी अच्छी पुस्तक पढ़िए, जैसे मतलब अभी जो बड़ी फेमस बुक है, ये आई थी, मैं खुद ही जो पढ़ रहा हूँ, वो 80/20 करके एक बुक है। जी उसमें ये है कि हाउ टू अचीव मोर इन लेस टाइम। उसमें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट भी है कि 80% ऑफ द टाइम हम जो अपने जो समय व्यतीत करते हैं, वो व्यतीत करते हैं 20% ऑफ फ्रूटफुल चीजों में, जी जबकि हमें उल्टा करना चाहिए। बात भी सही है। अब Sir, उसके कौन सी दौरान book is this? Sorry for the interruption, sir. What is the name of that book which you are reading, sir? 80/20 करके है, 80/20 प्रिंसिपल। 80%। हाँ, अब इस बुक में, अब मैं बताता हूँ, इस बुक को लिखने का बहुत अच्छा तरीका है। जो ऑथर ने क्या किया है, बहुत सारा रिसर्च दिखाया है कि यहाँ की रिसर्च ये कहती है, इस रिसर्च पब्लिकेशन में ये कहता है, ये कहता है। क्योंकि अब एज ऑथर जब आप कोई चीज लिखना चाहते हैं तो कन्विंस तो करेंगे ना रीडर को। रीडर सिर्फ संतोष गुप्ता की बात या बैरवा जी की बात, उनकी बात तो मानेगा नहीं। रीडर को तो चाहिए कि भाई जब उसको हिस्टोरिकल डेटा हो, बहुत सारे रिसर्च पेपर और इसकी बात कही गई हो, तभी वो मानेगा। तो हमें क्या होता है कि वो कई सारी बातें कहते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए कहना है कि सुबह उठना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब ये सिर्फ एक सेंटेंस रहेगा तो उसको कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन मैं उसमें अगर 100 रिसर्च दिखाऊं कि इस बुक में भी ये कहा गया था, इस रिसर्च में भी ये सिद्ध हुआ था, यहाँ भी ये सिद्ध हुआ था, तब जो पढ़ रहा है वो रीडर कहेगा कि नहीं, बात जो कह रहा है ऑथर सही कह रहा है, चलो कल से मैं भी सुबह उठता हूँ। ठीक। तो ये इम्पैक्ट लाने के लिए हमें रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं। अब रेफरेंसेस का सबसे अच्छा तरीका है 1 2 3 करके वहीं पे सुपर स्क्रिप्ट में छोटा सा ऊपर को एक आ जाता है ना, पूरा पैरा लिख दिया, 3 लाइन लिख दिया, वहां डाल दिया एक ब्रैकेट में छोटा सा 1, ऐसे ही 2। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर पेज का जो भी रेफरेंस है, आखिर में जाके संदर्भ सूची, कई पेज, कई बुक्स तो ऐसी होती है जिसकी संदर्भ सूची बहुत बड़ी है, जी सर। तो तो कोई दिक्कत सर नहीं है। अभी क्या क्या है कि 1 साल लगा इसको लिखने में, और उस समय तक जानकारी नहीं थी। दिसंबर में ये मार्केट में आई बुक, और उसके बाद में जब अब कोर्स वर्क कर रहे हैं तो अब समझ में आ रहा है कि थोड़ी सावधानी और उसमें रखी जानी चाहिए थी। अगला संस्करण जब निकालिएगा तो रिवाइज कर दीजिएगा, क्या दिक्कत जी है। सर, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद तो सर। आप, क्योंकि मेन नियत देखी जाती है। मेरे पास भी जब मैटर आता है, जब दो लोग फाइट कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि मैं बिना देखे ही जजमेंट अपना दे देता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ, फिर सामने वाले जो बहुत एग्रेसिव होते हैं उनको भी बोलता हूँ कि भाई ठीक है, इनोसेंट मिस्टेक थी, कोई मैलाफाइड इंटेंशन से की हुई चीज नहीं थी, तो वो भी शांत हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगला संस्करण जब लाइए उसमें करेक्ट कर लीजिए मिस्टेक, हाँ, उसमें तो सुधार लेंगे सर, बिल्कुल। बस कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे हैंड रेज दिख रहे हैं। संदीप मालो जी कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, नो सर।
I think sir Vibha Sir. Taylor. Vibha. यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हमें रिसर्च के किस स्तर पे जाके उसको पेटेंट कराना होगा? मतलब हमारा टॉपिक डिसाइड जब हो जाएगा तब, या फिर हम टॉपिक डिसाइड करके उसको कैसे करेंगे हम रिसर्च को सिनॉप्सिस जब बनाते हैं, मतलब उस स्तर को? तो टॉपिक को करवाना है पेटेंट या वो शोध के तरीके को करवाना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये कहीं पे कुछ आप लोगों का, कुछ रिसर्चर्स का कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी क्या कहीं पे? ये मैं पिछले 3 महीने में मैंने जितनी भी टॉक दिया है वहां पे ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन हर जगह ये आया है। सर अभी देखिए, ज्यादा अवेयर हो गए हैं ना सब इस बारे में, तो सबके माइंड में वही देखिए चीज मुझे लग रहा था होंगी। कि सामने कहीं एक ही कोई सेशन तो नहीं किसी ने अटेंड किया है। हाँ देखिए, इसमें क्या है कि जब भी कोई हम रिसर्च करते हैं तो हमारा सिर्फ टॉपिक से नहीं, अब जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल ले लीजिए कि हम रिसर्च कर रहे हैं यही हवा को शुद्ध करने का। दिल्ली है, दिल्ली की हवा विंटर्स में खराब हो जाती है, उसको प्योरीफाई करने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। अब आपने एक टॉपिक लिया, आपके जो गाइड है उनको लगा कि यह टॉपिक तो बहुत अच्छा है, करो इस पे काम। अब इस पे लेकिन आपने काम कुछ अभी नहीं किया। आपके काम के क्या क्या पार्ट होते हैं? पहले आप डिसाइड करते हैं किस फील्ड में काम करना है, फिर आप डिसाइड करते हैं कि उस फील्ड में क्या क्या हो चुका है, फिर आप डिसाइड करते हैं जो जो हुआ है उसमें समस्या क्या है, कुछ तो समस्या है। उसके बाद आप कहते हैं कि अच्छा अभी तक जितनी भी, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि इसमें जो आपने पूरा किया, इस पूरे रिसर्च के दौरान आपने ये पाया कि जितने भी सॉल्यूशन है वो बहुत महंगे हैं। हमारा कोई ऐसा होना चाहिए कि 100 रुपए की चीज लगा दें घर में और एकदम हवा साफ हो जाए। अभी एयर प्योरीफायर हुआ या कोई भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो सब महंगी है। आपने ये कहा, आपके गाइड कहेंगे हाँ चलो बढ़िया है, चलो इस पे काम करना शुरू करो। तो आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, आपने पास्ट डिसाइड कर लिया कि वर्क क्या क्या हो रखा है। अब आप ये करना शुरू करेंगे कि इसको करना कैसे है, या आप जो कह रही हैं वो फिजिबल है भी कि नहीं है, फिजिबिलिटी स्टडी जिसको कहते हैं। जब आपकी फिजिबिलिटी स्टडी हो जाती है और लगता है कि ये फिजिबल है, तब आपको पेटेंट फाइल कर देना चाहिए प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन से। क्यों? क्योंकि अभी भी आपका रिसर्च चल रहा है, आपको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली मुझे जो मोनोपोली चाहिए 20 साल के लिए वो किस चीज के ऊपर चाहिए, लेकिन ये भी आपको पता है कि अगले 1 साल में मैं कंप्लीट कर लूंगी। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करने के बाद 12 महीने का टाइम होता है जिसमें आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना पड़ता है। और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में ये क्लेम्स वाला जो मैं पार्ट कह रहा था, क्योंकि भाई आपको मोनोपोली तो उसी पे चाहिए ना जो आपने काम किया है, तभी उसका यूज है, नहीं तो पेटेंट का यूज नहीं है। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि हम क्या बनाने वाले हैं, तब आपको फाइल कर देना चाहिए। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट तक वेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक रिसर्च की फील्ड कॉम्पिटिटिव रिसर्च की फील्ड है, उसमें दूसरा कोई भी कर रहा है काम, पता चले आप सोच ही रहे हैं और तब तक किसी ने पेटेंट फाइल कर दिया, तो जिसने पहले फाइल किया उसको मिलेगा। क्योंकि जो पेटेंट ऑफिस में जो कंट्रोलर बैठा उसको नहीं पता ना कि विभा जी के दिमाग में पहले बात आई या संदीप मालव जी के दिमाग में पहले बात आई। हमारे पास तो पेपर जिसका पहले आया उसी का हम मानेंगे। तो इसलिए जब फिजिबिलिटी, अच्छा कई बार लोग क्या करते हैं, आइडिया आया और तुरंत फाइल कर दिए। अब वो तो आइडिया था, जैसे ही अगला क्वेश्चन होगा कि आपने किया क्या है ये तो बताइए, तो वो वहां पे फॉल्टर करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं था। तो जब टॉपिक डिसाइड हो जाए, बैकग्राउंड सर्च हो गया, क्या करना है ये चीज डिसाइड हो गई, और कुछ करके देख लिया कि ये वाकई प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जैसे एक फिजिबिलिटी स्टडी मान लीजिए कि कोई कहे कि सिलेंडर जो होता है, गैस सिलेंडर, वो बड़ा भारी होता है, तो पहाड़ों पे जब ले जाना होता है, आप शिमला जाइए, मनाली जाइए, तो बड़ा टैक्सिंग टास्क दिखता है कि एक आदमी लेके जा रहा है, क्योंकि हर जगह वहां पे वाहन नहीं जा सकता। अब कोई कहे कि मैं प्लास्टिक का सिलेंडर बना दूंगा जो वेट में हल्का होगा तो हो जाए, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन क्या प्लास्टिक उतने प्रेशर को विदस्टैंड कर पाएगा जिस प्रेशर में वो एलपीजी रहती है, लिक्विफाइड गैस रहती है? आपने इसका रिसर्च ही नहीं किया। तो जब आपको इसकी फिजिबिलिटी दिख गई कि हाँ ये पॉसिबल है, ये सब मैंने काम किया, तब आपको पेटेंट फाइल करना चाहिए। प्रोटोटाइप डेवलप आप 1 साल में कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू सर। ओके,
कल्पना मीना जी ने हैंड रेज किया है। मुझे लग रहा है बाई मिस्टेक हैंड रेज। Somebody want to ask question? हेलो सर, आई एम टीना मीना, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। सर अगर अपनी स्टडी के दौरान या रिसर्च के दौरान कोई प्लांट जो है नई सीड मुझे मिलती है तो क्या उसका भी पेटेंट पॉसिबल होता है? पेटेंट जो होता है वो इन्वेंशन के लिए होता है, डिस्कवरी के लिए नहीं होता है। अब आपने कहा मुझे कोई नई प्लांट या नई सीड मिलती है। मिलती है का मतलब है कि आपने डिस्कवरी किया है, इन्वेंशन नहीं किया है। आविष्कार और खोज में अंतर है। पेटेंट आविष्कार के लिए मिलता है, खोज के लिए नहीं। हैविंग सेड दैट, अगर आपने अपने बॉटनी के रिसर्च के दौरान ही कोई उसमें ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, कुछ आपने उसमें जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया सीड को रिसर्च के दौरान, कि उससे प्रोडक्टिविटी उसकी एनहांस हो गई या वो ज्यादा क्लाइमेट टॉलरेंट प्लांट बन गया, तो वो रिसर्च आपका माना जाए, क्योंकि आपने बनाया, वो एग्जिस्ट नहीं करता था। एक चीज होता है कि कभी कोई चीज एग्जिस्ट करे, और एक चीज होता है कि कभी कोई चीज एग्जिस्ट की बात नहीं है, मैंने क्रिएट किया है। तो अगर आपने ट्रांसजेनिक प्लांट किया है या जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई जीव बनाया है, वो आप पेटेंट करा सकती हैं, उसकी टेक्निक भी करा सकती हैं। लेकिन अगर आपने केवल डिस्कवरी की है तो नहीं हो सकता। डिस्कवरी के लिए नहीं, खोज के लिए नहीं, आविष्कार के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। सर आपके कांटेक्ट नंबर मिल जाए तो अच्छा रहे सर। कांटेक्ट नंबर नहीं लीजिए, ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। ईमेल आईडी पे आप, प्रेजेंटेशन में ईमेल आईडी है, आप उस पे ईमेल कर सकते हैं। जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, अगर अपन कोई पेटेंट लिख रहे हैं, उसमें 5, 7, 10 लोग अपन साथ हैं, तो उसमें अकाउंट होंगे नहीं होंगे या मेन काउंट होगा? नहीं, पेटेंट में अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑथर नहीं है। रिसर्च पेपर जैसा नहीं होता है कि पहले अच्छा। गाइड का नाम आया तो उन्हीं की वैल्यू है। नहीं, ऐसा नहीं होता है यहाँ बाकी पे। सबके हाँ, जितने लोग हैं सबकी इक्वल वैल्यू है। पेटेंट में दो चीज होती है, एक होता है इन्वेंटर और एक होता है एप्लीकेंट। जी। अगर आपने मान लीजिए कहीं के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एग्रीमेंट टाइप का है, जी। या आपको कोई यूनिवर्सिटी पैसा दे रही है आपके रिसर्च के लिए, तो कई बार यूनिवर्सिटी कहती है एप्लीकेंट हम होंगे, आप सिर्फ इन्वेंटर होंगे। जी। और अगर आपका अपना रिसर्च है और आप लोग फाइल कर रहे हैं तो इन्वेंटर और एप्लीकेंट सेम होते हैं। जो मतलब पेटेंट सर्टिफिकेट पे, मैं बता रहा हूँ, पेटेंट सर्टिफिकेट पे जो नाम आता है वो एप्लीकेंट का आता है। इन्वेंटर का नाम इंक्लूड करने के लिए अलग से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अच्छा, अलग से करनी पड़ती है उसके लिए? हाँ, तो इसलिए ठीक है। ये ध्यान रहे कि इन्वेंटर कौन होता है और एप्लीकेंट कौन होता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस मेरे सामने आया था। उसमें यही था कि वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अब उन्होंने रिसर्च किया, उनका नाम इन्वेंटर में आ गया और यूनिवर्सिटी ने अपने नाम से फाइल कर दिया, यूनिवर्सिटी एप्लीकेंट थी। अच्छा, जब हम एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसमें लिखा होता है, आईपीआर क्लॉज होता है कि आपकी ड्यूरिंग द कंकरेंसी ऑफ योर जॉब, if you are coming up with any IP thing, intellectual property, that will get automatically assigned to your university, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एग्रीमेंट है। ठीक है सर। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने बाद में बोला कि सर इस पे तो नाम ही नहीं है मेरा। जब पेटेंट सर्टिफिकेट हुआ तो मैंने कहा कि उस पे तो एप्लीकेंट का ही नाम होता है। उन्होंने कहा सर नहीं, वो तो मैंने ही किया था। तो इस वजह से ये जानना जरूरी है कि इन्वेंटर का जो काम है वो इन्वेंशन कर दिया, और अगर आपने आपके राइट्स अगर एप्लीकेंट के पास हैं, यूनिवर्सिटी के पास है, तो सर्टिफिकेट पे नाम एप्लीकेंट का आएगा। बाकी वो लोगों का नहीं आएगा? बाकी लोगों का नाम नहीं आएगा। बाकी लोगों का नाम आने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ग्रांट होने से पहले। परमिशन लेनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी को बोलना पड़ेगा कि भाई हमारा नाम भी उस पे चाहिए हमें सर्टिफिकेट पे। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, तो वो सर्टिफिकेट पे दूसरा एक कॉलम भी बन के आ जाता है कि ये इन्वेंटर है। बाय डिफॉल्ट वो नहीं होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके।
सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जो कॉपीराइट का जो ड्यूरेशन होता है वो ऑथर की लाइफ और प्लस 60 ईयर। देन ऑथर यदि ऑथर की डेथ हो गई उसके बाद 60 साल तक वो उसका कॉपीराइट का जो टाइम है उस टाइम पीरियड में कौन क्लेम करेगा उस चीज को? लीगल हेयर। अगर उसके जो हमारी वकील डेथ हो बने। जाती है, मेरी डेथ मान लीजिए हो जाती है, तो मेरी सारी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? मेरे जो लीगल हेयर है। यस वैसे ही कॉपीराइट के साथ है। थैंक यू सर। जो उत्तराधिकारी है उसका अधिकार थोड़ी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम। और कोई प्रश्न? Thank you, sir. I think nobody is interested now. Thank you, sir. We are so grateful for your time and effort in speaking at our coursework. Your words are inspiring and your presence was invaluable. Thank you. We are Thank you to everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you so much, sir.